Hello. Good afternoon, sir. Okay, chalo. We'll start with the 26th question. Uh, just show me the slides. Start. Can you see the green slide? Question number 26. Yes, I think so. Yes. Okay. So now they are telling you that a simple pendulum is vibrating with an angular amplitude of 90 degree as shown on the figure. For what value of alpha is the acceleration directed vertically upward, vertically downward, and horizontally? So now there are three cases. We'll deal with the first case. That is case one. He is telling you when the acceleration is directed vertically upward. Now you know that when the pendulum is this way, and suppose he's going this way, there is a centripetal acceleration which is only there, which is v square by r, but there is no tangential acceleration because tangential acceleration ka formula is g sine theta. Theta is made with the vertical, but theta is zero, so tangential will be zero. So can I say over here the acceleration is directed vertically upward? So this point is satisfied. So theta over here is zero. That means it will match with either this or this. Yes or no? Hello. Yes, sir. Now we'll come to the B point, which is vertically downward. If the particle, if the pendulum is this way and the bob is this way, this is the hinge. I know that over here the V is zero because it is left from here. This is left with an angle theta with respect to 90. But there is an acceleration tangential because it is going to go this way. The tangential acceleration is g sine theta, which is g sine 90 will become g. So it is vertically downward because centripetal to यहाँ पे zero है ना. Centripetal is v square by r. Are you all understanding? We have done this thing before also. Hello. Yes or no? Yes, Hello. sir. So vertically downward is 90. This is the third number actually over here. So can I say this is 90 and this is 90? So actually the answer will be A or C. Now third case, when is the acceleration directed horizontally? It's very, very important to understand when is the acceleration directed horizontally. We know that at some angle alpha, this will be the centripetal acceleration will become v square by r. And this will be the tangential acceleration, g sine alpha. Acceleration is directed horizontally, and then this should be a net. Can I say if acceleration is directed horizontally, can you tell me the angle between this and this is 90? Can anyone tell me if a net is horizontal, matlab a net is making how many degrees with the either of them? Bolo. Hello. A net is horizontal, बराबर है? तो यहाँ पर हाँ, can I say if this is alpha, this is vertical, this is there, so this will also be alpha. ये alpha है, ये alpha रहेगा. Hello, are you getting it? Hello. Can I say in this case tan alpha क्या रहेगा? tan alpha क्या हो जाएगा भाई? ACP by 80. ACP by 80 v square by r by g sin alpha. मिल गया. ठीक है. अब हमको v भी मांगता है. v
Can I say V over here is under root 2gh? It is left from this way, na? Hello? Hello, yes or no? So V over here should be under root 2gh. तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा? एक मिनट मैं पीछे ही डायग्राम बना लेता हूँ. There is less space over here. लोग एक बार फिर से देखते हैं क्या हो रहा है. यहाँ पर ये इधर से लीव किया, इधर आया. Can I say it is making some angle alpha with respect to him? यहाँ पर तो V है. अच्छा, कोई बता सकता है ये H कितना रहेगा? ये हाइट कितना रहेगा? हेलो, ये हाइट कितना रहेगा R बेटा? sin alpha. ये वही है ना, ये वही है. R sin alpha के R cos alpha? Cos alpha, sorry. L cos alpha. So V over here will become under root 2gh. H is L cos alpha. ये तो मिल गया. Now I need, this is centripetal and this is tangential, and I know if this is alpha, this will also be alpha. So tan alpha is going to become ACP by AT, that is V square by L by G sin alpha. V square will become 2g L cos alpha. By L G sin alpha. L और L cancel, G और G cancel, तो ये हो जाएगा 2 क्या भाई? cot alpha Cot alpha. is equal to tan alpha. बराबर हो गया. ये हो जाएगा tan square alpha is equal to 2. So tan alpha is going to become what, sir? Yes or no? So can I say if tan alpha is root 2, then this is alpha, this is root 2, and this is 1. It will become 2 plus 1, that is root 3. So cos alpha is going to become 1 by root 3. So 1 by root 3 में आंसर हमको यहाँ पर मिलेगा. Hello, are you all understanding? Hello, yes or no? Hello, yes or no? So, ये चीज वही चीज है जो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं. It is nothing new, and we have done this before also. वही चीज है, आप लोग देख सकते हो. So we need to find the value of alpha. Okay, we'll come to question number 29. ये भी किया हुआ सम है, अगर आपको याद रहेगा तो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में हमने यही सेम सम किया है. सेम सम इट इज देयर. ओके, 29 sum. Listen over here. So a tube of length L is filled completely with a liquid. So there is a tube of length L, 0 ye L, is filled with a liquid. Sorry. Of mass M, closed at both ends. The tube is rotated on the horizontal plane about one end with an angular speed of omega. इसको घुमा रहे हैं. The force exerted by the liquid on the other end. तो यहाँ पर हमको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है कि ये एक कंटिन्यूस बॉडी है. हेलो, दिस इज अ discrete body or a continuous body? It is a continuous body. So can I say centripetal force हर पॉइंट पे चेंज होगा? भाई अगर हमने इतना टुकड़ा लिया, ये वाला टुकड़ा लिया, तो इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इतने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ना. हेलो, कितना रहेगा? m ओमेगा स्क्वायर x ना. हेलो, yes, sir. इधर चेंज हो जाएगा, बस इधर का x अलग है और इधर का x बहुत ज्यादा है. Can I say centrifugal force keeps on Increasing. changing, increasing.
तो इसका मतलब ये वाला जो सम है वो एक इंटीग्रेशन वाला सम है, where we have to follow the rule. What is the rule? Step 1, go to x, take dx. Okay, so I went to x, ये पूरा ट्यूब था जिसका लेंथ l था. I went to x and I take a length dx. Okay, we are only looking at this part, only looking at this part. Okay, step 2, mass of the infinitesimal element, mass of the small element will be mass per unit length into length of the element. Hello, yes or no? Yes, sir. Step 3, force on the element, centrifugal force on the element will become m. M इसका mass is dm omega square, और distance कितना यहाँ से यहाँ तक x है ना. Okay, so this is the force acting on him. But can I say ऐसे तब टुकड़े are ranging from 0 to L ना. I'll integrate this from 0 to L. तो इसको इंटीग्रेट करो तो ये f बन जाएगा, ये 0 to L हो गया. dm की जगह लिख सकते हैं m by L into dx ओमेगा स्क्वायर x. तो x dx का इंटीग्रेशन होके x स्क्वायर बाई 2 बन गया. ये बन गया ml ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2. It will become m omega square L by 2. This is the force exerted at the other end. Did you understand बेटा? Hello. Yes, sir. इसका दूसरा तरीका क्या है? ये तो एक जनरल कन्वेंशनल मेथड है. किसी को याद है दूसरा तरीका? एकदम इजी है. We using the concept of Center of mass. सेंटर ऑफ मास में ट्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा. बराबर है क्या? हेलो, यस और नो? तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर r, बट r इज L by 2. देखो डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं? हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये सेंटर ऑफ मास की खासियत है, इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का चैप्टर पढ़ते हैं, ताकि ये सब इंटीग्रेशन के लफड़े से हम लोग बच जाए, जिस प्रॉब्लम से हम लोग बच जाए. जनरली एवरीवेयर यू कैन नॉट डू, यू कैन जनरली डू इट इन सिमेट्रिकल बॉडीज. कभी कभी काम नहीं करेगा, ठीक है, पर यहाँ पर तो इट इज वर्किंग स्ट्रांगली. m omega square L divided by 2. I hope everyone is understanding. It is not a big deal, ठीक है ना. Now we come to question number 32. सिंपल पेंडुलम की सम्स ही generally देखे जाते हैं. See what is question number 32 telling you. The figure shows a light rod of length L. दिख रहा है ना आपको डायग्राम में? Attached to a very small block. So this is a very small block which is there at one end and a hook at the other. The system is released from rest with the rod in the horizontal position. So this is the initial position. Is released. Then it is fixed on a smooth ring at a depth h. The hook is fixed on a smooth ring at a depth h below the initial position of the hook, and the hook gets into the ring and reaches there. What should be the minimum value of h so that the block moves in complete circle? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो रहा है देखो, ये ऐसे था, ऐसे गिरा हुआ है हाइट ऑफ h. It will get entangled in the hook, and then this guy should perform what? A full circle. Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Then easy है. मुझे तो मालूम है मिनिमम स्पीड यहाँ पे कितना होना मांगता है? √5r. 5 RG. L है ना, L. LG. ये तो होना मांगता है. अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है. अच्छा ये जब गिरेगा तो इसके पास स्पीड कितना रहेगा? इसका तो u0 है ना बेटा, इसका v कितना रहेगा? बोलो. √2gh. √2gh.
अच्छा ये भूल जाओ, चलो मैं आपको दूसरा शॉर्टकट बताता हूँ, ये भूल जाओ वर्टिकल का. Does anyone know how much should be the minimum speed over here at this position? रूट रूट 3 थ्री RG. जी 531 का रूल है ना, यहाँ पर √3 RG होना चाहिए कि नहीं? हेलो हेलो, यस और नो? अरे भाई याद है ना सबको, ये √5 RG था, ये क्या था? वही सामने भी होना चाहिए ना, बिकॉज सेम लेवल पर है ना. और ये कितना होना चाहिए? √LG. Are you getting it? Yes, sir. Can I equate this both? Nothing. We got the answer. Square करके दोनों को equate कर दो, तो ये हो जाएगा 2LG is equal to 3LH. नहीं, 2LH is equal to 2GH is equal to 3LG. ये cancel हो गया. H will become 3L/2. I hope it is clear. कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ. एक मिस्टेक हो गया. क्या मिस्टेक हो गया? बोलो जल्दी. हमने एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया. हमने एक मिस्टेक, बाकी सब सही है, एक मिस्टेक हो गया मेरे से. 4 RG. क्यों 4 RG? Because it's a rod, not a string. It is a rod. हाँ, एक रॉड है भाई, हम सही कर रहे हैं. ये स्ट्रिंग होता तो ये सही होता, और यहाँ पे तो रॉड है भाई. रॉड तो कभी स्लैक ही नहीं हो सकता है ना. हेलो, तो स्ट्रिंग होता तो ये सही होता आंसर 3/2L. but यहाँ पर since it is a rod, I have to do the whole thing. Listen over here. We want that, we know that the velocity over here should become under root 2GH. ये ऐसे है. Does anyone know what should be the minimum speed of the rod at this point to go in a circle? हेलो, याद है ना? Yes, sir. Okay. I'll consider this to be initial position, and I'll consider this to be final position. So can I say total energy initial is total energy final? कौन सी energies है इसके पास? Kinetic energy initial plus potential energy initial is kinetic energy final plus potential energy final. Kinetic energy initial is half mv square. Potential energy is mgl. तो ऊपर है ना L. Consider this to be my data. तो यहाँ पर potential energy 0 रहेगा. Kinetic energy will become half mv square minimum square. Potential energy 0 है, तो half m और m थोड़ा ऐसे ही उड़ा दो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा तो ये v स्क्वायर हो जाएगा. v स्क्वायर मतलब 2gh हो गया प्लस 2gl is equal to v minimum का स्क्वायर will become 4gl. तो 2gh is equal to 2gl. हेलो, तो h मिनिमम क्या हो गया? किसके बराबर हो गया? l के बराबर हो गया. दिस इज फॉर अ रॉड. एक छोटा सी गया मिस्टेक तो प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, h इज l. और अगर ये स्ट्रिंग हुआ तो आंसर कितना आया था मुझे? 3L/2. याद है ना? हेलो, that also we know how to do. So that is the whole thing. Now questions are same only. We'll go to the 34th question. अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसने प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर को कंबाइन कर दिया. A body is tied to a string and revolved in a vertical circle with minimum velocity. Minimum velocity मतलब it will obey the 531 rule. So can anyone tell me what will be this velocity? Root RG. √RG. Okay, √RG की जगह √LG लिख सकते. Okay. When the body reaches the uppermost point, the string breaks. ऊपर जाके टूट गया तो उसका velocity √LG रहेगा और टूट जाएगा. The body moves under the influence of gravitational field in a parabolic path. Projectile motion है. तो horizontal range चाहिए, मतलब ये आपको ये SX मिलता है.
Can anyone tell me Sx का फॉर्मूला सबको मालूम है is ux into t? Yes, sir. ux आपको मालूम है ux यही होता है, ये ux ही तो है. ux is under root lg into t. t याद है is under root 2h by g. Yes or no? Yes, sir. Root l into 2h. Does anyone know what is h? h यहाँ से यहाँ तक कितना 12. 12 है. ये तो हो गया ना 2l का 4l, तो ये 2l ही बनता है ना. Yes or no? Yes, sir. तो इजी है, अगर आप एडवांस लेवल पे भी देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत इजी है. ओके चलो आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पर आता है. दिस इज 36th ऑफ दिस सिंगल करेक्ट, देन वी गो टू मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस. ओके देखते हैं क्या हुआ. A bob of mass m is suspended by a massless string of length l. The horizontal velocity at position at a is sufficient to make it reach the point r. The angle theta which with the speed is half of that of a satisfies. अच्छा यहाँ पर ओके ये क्या बोलना चाह रहा है? This is sufficient to reach r. r मतलब रेडियस पर, इधर. हेलो, getting it? This velocity is sufficient to make it reach horizontally. कोई बता सकता है कितना हो सकता है ये स्पीड? मिनिमम कितना हो सकता है ये स्पीड? अंडर रूट root 2rg. 2rg हो सकता है. 2gl तो होना ही चाहिए, because then only from here it will reach here ना बेटा. हेलो, yes or no? अरे भाई yes or no, करेक्ट है ना? Yes, sir. Angle theta at which the speed of the bob is half of that of a. Speed of the bob is half of that of a. मतलब यहाँ पर ये स्पीड मांगती है which is v by 2. हेलो, yes or no? हेलो, yes or no? Yes, sir. ये चीज है तो ठीक है, तो प्रॉब्लम तो है नहीं. ये हम लोग एक काम करते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट पकड़ते हैं और उसको फाइनल पॉइंट पकड़ते हैं. इसे टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल. के प्लस पी इनिशियल इज इक्वल टू के प्लस पी फाइनल. या तो आप डायरेक्टली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh भी लगा सकते हो. के इनिशियली कितना रहेगा? हाफ एम v मिनिमम स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर. v मिनिमम नाम दिया है तो ठीक है, इसको रहने दो. पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ एम v डैश का स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम mgh. कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज दिस h? हाँ भाई, ये कितना रहेगा h? L1 minus cos theta. L1 माइनस cos थीटा रहेगा, तो ये हाफ 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 वैसे ये m और m उड़ा दो, मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो ये मिलेगा v मिनिमम का स्क्वायर is equal to v dash का स्क्वायर प्लस 2gh. h is L1 minus cos theta. v minimum is under root 2gl. 2gl का 2gl हो गया is equal to v dash का स्क्वायर plus 2gl 1 minus cos theta. But v dash becomes what? v dash becomes what? हेलो, Half of V. हाँ तो 2gl का ये हो जाएगा 2gl by 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा ना, सही है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके प्लस 2gl 1 minus cos theta. ये कितना होता है? ये हाफ होता है, तो ये 2gl minus half gl will become 3 by 2gl is equal to 2gl 1 minus cos theta. सही है ना? हेलो, Yes, sir. मैं सही कर रहा हूँ ना? getting it or not? Yes or no? Yes.
एक मिनट, reaches the point, यहाँ पर गलती हो गई यार, reaches the point, ये पॉइंट बी होना चाहिए। ठीक है चलो देखते हैं। 3/4 होता है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे लिखता है? 1 माइनस कॉस थीटा 2 ट्रिग्नोमेट्री, sin square theta by 2. ये हो जाएगा 3/8 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप लोग √3 बाय कितना निकालेंगे? 2√2 बराबर क्या? हेलो, Yes, sir. साइन थीटा बाई 2। सो साइन इनवर्स ऑफ, ये आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, √3/2 थीटा बाई 2। यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। गेटिंग इट? हेलो, Why is it a range? यस। सी जनरली you have the book beta, do you have the book? Yes, sir. बुक में जरा क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन ही एक्चुअली प्रिंटेड गलत है, उसके अकॉर्डिंग हमने किया है। ये पॉइंट आर नहीं है, वो पॉइंट बी है, बराबर है क्या? हेलो, ये जो पॉइंट है क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो जरा, Sir, it is point B. बी दिया है ना। अब मैं यही क्वेश्चन को, ये समझा आपको? Yes, sir. ये क्वेश्चन समझाना आपको, यही क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं, वेयर इट इज रीचिंग पॉइंट बी। तो ये क्वेश्चन को हम लोग साइड में रखते हैं, ये भी क्वेश्चन सही है अगर वो कहता पॉइंट आर पे पहुंचा है तो। अभी इसी लाइन पर हम लोग एक काम करते हैं, कोई बता सकता है पॉइंट बी पे पहुंचना है तो मिनिमम स्पीड इधर कितना होना चाहिए? √5 LG. तो कोई बता सकता है वी डैश जो बनेगा v/2 वो इधर किधर बनेगा? हेलो, हेलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. बिकॉज ये यहाँ पर आके तो सबको मालूम है कि रूट कितना होता है, √3 LG. ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो कितना होएगा? √5/4 LG हो जाएगा ना। हेलो, यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? 5/4 कितना होता है? 3 से 1. ज्यादा होता है, 3 से कम होता है? 3 से कम होता है ना। हेलो, Yes, sir. हेलो, दैट मीन्स वो जो थीटा रहेगा वो 90 से ज्यादा होना चाहिए। हेलो, थीटा जो रहेगा, ये जो थीटा है ना, जहां पर वो जा रहा है वो 90 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए ना बेटा। हेलो, Yes, sir. थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90, यस और नो? एक्चुअली आंसर यही दिख रहा है मुझे, और मैं फिर से मैच कर देता हूँ। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई टेलिंग यू ऑल? Yes, sir. अब वही चीज लगाओ, इसको इनिशियल पकड़ो और उसको क्या पकड़ो? क्या पकड़ो भाई? फाइनल, फाइनल, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्वेश्चन का प्रिंटिंग और इसने थोड़ा प्रॉब्लम कर दिया था, बट ठीक है, हम लोग यहाँ पर टोटल एनर्जी इनिशियल इज टोटल एनर्जी फाइनल के बेसिस पर करते हैं। टोटल एनर्जी तो मालूम है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 LG। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, टोटल एनर्जी फाइनल क्या रहेगा? हाफ एम वी डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा 5/4 LG। पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? कोई बता सकता है पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? mgh, बट h क्या है? h क्या है? चलो मजा आएगा, h क्या है? h इज l। एक काम करते हैं हम लोग, अभी ये एंगल को अल्फा पकड़ लेते हैं, चलेगा क्या? हेलो, हेलो, Yes, sir. ये कितना हो जाएगा? L sin alpha. l साइन अल्फा, सही है ना? हेलो यार, मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ये तो ठीक है, तो m और m निकाल दो, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 LG इज इक्वल टू 5/4 LG प्लस 2G h को लिखेंगे l प्लस l साइन अल्फा। आर यू देयर विथ मी? आर यू Yes, देयर sir. विथ मी?
Yes, कुछ sir. भी नहीं, ये खाली वो इधर उधर करना है यार। ये एल, ये जी उड़ गया। अच्छा एल भी उड़ा देते हैं हम लोग, एल एल, और ये दोनों का एल भी निकल गया, बराबर गया। ये हो जाएगा 5 - 5/4 विच इज व्हाट सर, 2 1 प्लस साइन अल्फा, सही है ना। Yes, sir. कितना होता है 20 - 5, दैट इज 15/4 इज इक्वल टू 2 1 प्लस साइन अल्फा। क्या होता है, कोई फॉर्मूला मालूम है क्या? ये जाने दो ना, इधर ही आ जाएगा आंसर। ये हो गया 15/8 -1 इज इक्वल टू साइन अल्फा। हेलो, Yes, sir. ये कितना होता है 7/8 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 7/8 निकाल के देखो, ऑब्वियसली वो जो आंसर आएगा वो 3π/4 आएगा। हेलो 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 हेलो, यस और नो, हेलो। ये जो थीटा आएगा वो 90 प्लस आ जाएगा ना बेटा, दिस थीटा विल बी 90 प्लस समथिंग ना, दैट विल रिजल्ट इन 3π/4, यस और नो। Yes, sir. ओके, ये आंसर आ जाएगा। तो दिस आंसर, ऑब्वियसली द आंसर इज ऑब्वियस ओनली, एक्चुअली द आंसर इज सी ओनली, बिकॉज 90 से तो ज्यादा होगा ही ना, ये तो हमने पढ़ा ही है ना 431 Sir, it could 531 be के D रूल। also. 3π, हाँ डी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, बराबर है। So actually it should be D because sin inverse 7/8 will be greater than 45 degrees. साइन इनवर्स ऑफ 7/8 इज 45, 90 प्लस 45, 3π/4 कितना डिग्री होता है? 3π/4 कितना होता है? 135 होता है ना। हेलो, Yes, sir. It's 135. 135। ये निकालो जरा, साइन इनवर्स ऑफ 7/8 निकालो। 7/8 करो, उसका साइन इनवर्स निकालो ना कैलकुलेटर से, कमान। कितना आएगा देखो। 0.76. हाँ नहीं, उसका साइन इनवर्स, हाउ मेनी डिग्रीज। हेलो, यू भाई, 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। हेलो, दिस आंसर इज व्हाट, 0.45 sin 45 0.707 ना। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ यार मैं, ये 45 है। हाँ तो ये 45 से ज्यादा आएगा, 45 से कम आएगा? 45 से ज्यादा हो जाएगा ना। 61 point something. हाँ, क्लियर है ना। हेलो, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। Yes, sir. ये चीज है, is only based on law of conservation of energy. I am starting with more than one correct options. हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड एंड फोर्थ are same type I am doing. This is different type of sum. That's why I am doing funnel वाला sum है। A particle is describing a circular motion in a horizontal plane in contact with a smooth surface of a fixed right circular cone with its axis vertical and vertex is down. The height of the plane above the vertex is h and the semi-vertical angle of the cone is alpha. ये एंगल अल्फा दिया है बेटा। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन विल, तो टाइम पीरियड निकालने में, ठीक है, एकदम आसान है। देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल है यहाँ पर, पार्टिकल के ऊपर वेट तो नीचे ही जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन बेटा ऐसे आएगा। हेलो, यस और नो। हेलो, अभी एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर, तो ये अल्फा हुआ, ये एन कॉस अल्फा हुआ, और ये हुआ एन साइन अल्फा। कैन आई से एन कॉस अल्फा balances mg and n sin alpha provides m omega square r, बराबर ना। हेलो 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 हेलो, यस और Yes. नो, आई ऑल देयर, ओमेगा स्क्वायर आर।
आर, या टाइम पीरियड के टर्म्स में भी चाहिए है, खाली टाइम पीरियड के बारे में ना, तो ठीक है, दैट इज ऑल ओके। ओके, नाउ आर मांगता है इन टर्म्स ऑफ एच, तो ये एच है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी आर इन टर्म्स ऑफ एच? आर इन टर्म्स ऑफ एच, तो ये आर है ना, ये एच है, और ये कितना रहेगा? ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा रहेगा ना। हेलो, आई ऑल देयर? हेलो, सो tan H cot alpha. H cot 90 alpha. minus alpha is equal to r by h. R will become h cot alpha. ये हो जाएगा n sin theta is equal to m omega square r. R is h cot alpha. तो इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो और डिवाइड मार दो, और डिवाइड मार देंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू m भी उड़ गया, ओमेगा स्क्वायर h cot अल्फा बाई g. तो tan स्क्वायर अल्फा विल बिकम ओमेगा स्क्वायर h बाई g. रूट अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा रूट h बाई g. बट आई नो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय बड़ो t इंटू रूट h बाई g. क्या सही कर रहा हूँ मैं? हेलो, सो टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई बाय tan अल्फा इंटू रूट ऑफ h बाई g. हेलो हेलो, यस और नो? ये मिला कि नहीं? हेलो, अच्छा कौन सी चीज कांस्टेंट है? 2 पाई कांस्टेंट है, tan अल्फा भी कांस्टेंट है भाई, अल्फा कांस्टेंट है ना यहाँ पर, तो ये तो कांस्टेंट है ना, और g कांस्टेंट है. कैन आई से टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट h? हेलो, so time period of revolution will increase as h increases. फिर and I also know that time period is inverse. अभी यहाँ पे अल्फा चेंज करने की भी बात कर रही है. So B also. हाँ, तो कैन आई से अगर अल्फा चेंज होगा तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो टाइम पीरियड विल बी इनवर्स टू tan अल्फा और प्रोपोर्शनल टू इनवर्स टू tan अल्फा, ये भी बराबर है. तो अगर अल्फा बढ़ेगा तो tan अल्फा बढ़ेगा, tan अल्फा बढ़ेगा तो t कम हो जाएगा, ये आंसर आएगा. हेलो, आर यू देयर? So हेलो, B also. डिक्रीजेस एस एच इंक्रीज एच, हाँ ये भी हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट है ना, बराबर है, तो ये भी सही है. हेलो, यस और नो? Yes sir. ए सी एंड एक्चुअली बी नहीं होना चाहिए, वो उल्टा है, ठीक है मैं लिख दिया हूँ. ओके, यू चेक व्हाट इज गिवन इन योर बुक, ठीक है ना. तो ये फनल वाले सम्स को ऐसे करना है, ये दोनों चीज इसको ध्यान में रखना है और वैल्यू निकालना है और फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है, यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर. फनल वाले सम में पूछेगा भाई स्पीड बढ़ा दिया तो ऐसे होगा, हाइट बढ़ेगा, हाइट कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से यू नीड टू मैनिपुलेट एंड गेट द रिजल्टेंट आंसर. ओके, तो सिंपल ही है, तो ज्यादा टेंशन वाला नहीं है ये. आई गो टू क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं. सेम ही है फनल वाला, ये फनल का प्रैक्टिस नहीं किया हम लोग ने, तो थोड़ा कर लेते हैं ना. बाकी सिंपल पेंडुलम के सम्स है वो तो आते ही रहेंगे आपको. A smooth cone is rotated with an angular velocity omega as shown in the figure. The block A is placed at a height h. Block has no motion relative to the cone. Okay. तो वो साथ साथ में चल रहे हैं, not slipping. Choose the correct options when omega is increased. तो सबसे पहले हम लोग बना ही लेते हैं इक्वेशंस, और इसको ही हम लोग थीटा पकड़ लेते हैं. ये थीटा रहेगा, ये गोल गोल घूम रहा है, ये तो n है, तो मालूम है अभी किया था n cos थीटा, और ये है n sin थीटा, ये पकड़ लेते हैं. So can I say n cos थीटा बैलेंस कर रहे हैं mg को, और n sin थीटा अभी हमने पढ़ा था, इट इज बैलेंसिंग m ओमेगा स्क्वायर r एट दैट इंस्टेंट. बराबर क्या? हेलो,
हेलो हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. यहाँ बोल रहा है ओमेगा बढ़ेगा तो क्या होगा? सी, हमको मालूम है कि ये फॉर्मूला को देखो, अगर मैं आपसे कहूँ n cos थीटा इज mg, तो n विल बिकम mg अपॉन cos थीटा। कौन सी चीज कांस्टेंट है इधर? तो ये पूरा कांस्टेंट है, mg तो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली थीटा भी कांस्टेंट है ना फनल का, हेलो? Yes, sir, it's constant. दैट मींस n इज आल्सो गोना रिमेन कांस्टेंट, Constant. सही है ना? तो दैट मींस ये कांस्टेंट रहेगा। अगर ओमेगा बढ़ाते हैं हम लोग, तो सुनना मेरी बात, ये कांस्टेंट रहेगा, थीटा भी चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब आर घटेगा। हेलो, आर यू गेटिंग इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? यार बहुत मस्त क्वेश्चन है। हेलो, Yes, देखो sir. ना, Got it. देखो n sin थीटा तो चेंज होने वाला नहीं है, m ओमेगा स्क्वायर आर, अच्छा ये भी चेंज नहीं होने वाला है, और कह रहा है ये बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली ये घटना चाहिए ना उतने अमाउंट से। हेलो हेलो, तो एक ही चारा है मेरे पास कि रेडियस शुड डिक्रीज। अच्छा रेडियस डिक्रीज मतलब हाइट विल डिक्रीज ना? अरे रेडियस डिक्रीज अगर हो रहा है इसका मतलब वो नीचे जा रहा है ना। हेलो, उसका मतलब हाइट कम हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. तो नॉर्मल रिएक्शन विल रिमेन अनचेंज्ड एंड हाइट विल इंक्रीज, नो। नॉर्मल रिएक्शन विल इंक्रीज, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। नेट फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? नेट फोर्स के बारे में क्या ख्याल है? हेलो, नेट It'll फोर्स के बारे, increase. नेट फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ व्हाट एंड व्हाट? नेट फोर्स इज अ रिजल्टेंट ऑफ एन एन एम जी ना? हेलो यार, नेट फोर्स जो बनेगा इसके ऊपर, जो नेट फोर्स लग रहा है वो किस किस के कारण लग रहा है? एन और एम जी के कारण लग रहा है ना? हेलो, आर यू देयर और नॉट? ये तो नेट फोर्स है। दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो ना, अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी बात कर रहे हैं तो ओमेगा बढ़ा आर घटा, दैट मींस दिस इज बैलेंसिंग ना? हेलो भाई, Yes, ये sir. बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स कांस्टेंट है ना बेटा? हेलो, क्या Yes, बोल sir. रहा चाह रहा हूं मैं? या तो दूसरा तरीका देखने का ये है कि नेट फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एन एम जी, और यू कैन से सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा बढ़ा तो आर तो उतने अमाउंट से घटा ना, तो दैट मीन दिस थिंग इज आल्सो गोना रिमेन व्हाट सर? कांस्टेंट, बिकॉज उसके सामने Constant. वाला कांस्टेंट है ना। हेलो, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम दो दो एंगल से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये नेट फोर्स कांस्टेंट है, मतलब आंसर सिर्फ डी बनेगा। हेलो हेलो हेलो, ओके तो ठीक है, तो ये फनल वाले समझे जिसमें थोड़ा सी कंफ्यूजन होता है, इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। ओके, प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, यू विल गेट द रिजल्ट इन, इसमें कोई दम नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ओके, फटाफट इसको खत्म करके वी कैन स्टार्ट विद अवर अदर चैप्टर, ठीक है? वी आर गोइंग वेरी स्मूथ आगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स खत्म होगा तो ही तो उसका एडवांस शुरू होगा, तो एकदम टाइम टेबल के हिसाब से ही चल रहा है। ओके, आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is pulled along a smooth surface in the form of an arc, तो आर्क की तरह हम लोग खींच रहे हैं उसको, ठीक है? is applied force F is 200, if the block starts from A, then the speed at B, the work done by gravity, the work done by tension is 0। अच्छा ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा। ओके, अब मेरी बात सुनो, ये ब्लॉक था, okay? And this was tied to a string, right? Yes. ऐसे है कि okay, it is going in the form of an arc on a smooth surface in the arc। okay, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ही बना लेते हैं हम लोग, एक मिनट।
So it was here, it is going in an arc of a circle. Can I say ये string में tension है? Hello? Yes or no? ये point पे normal reaction है? Are you there or not? Yes, sir. है ना? Tension है, ये force है, ठीक है? अच्छा, ठीक है. A to B. Can I say initial kinetic energy plus work done by all category of forces final kinetic energy? Because they are asking you speed at B, na? So this guy is at A, this guy is at B. Initial kinetic energy तो zero है A पर. Work done. चलो बोलो work done कौन कौन कर रहा है? कौन से forces है work done खींचने के लिए? Gravity and tension. And force. Work done by force है. Work done by So that gravity force है. is tension only, no? Tension only, yes. Work done by force. Or you can say tension also. It is the same thing because force उधर ही लग रहा है. Work done by gravity and तीसरा वाला work done by normal reaction भी तो है. Hello, half m b square. Are you there? Are you there or not? So but normal reaction is not doing work. हाँ हाँ वो बट लिखने में क्या जाता है बेटा? वो जीरो है. I know. Hello, getting it? Yes, बट sir. वो है ना एक टाइप का फोर्स तो है ना बेटा. ऑल में आएगा ही ना वो. Yes, sir. तो फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन भी तो आएगा. ओके, व्हाट इज वर्क डन बाय कैपिटल एफ फ्रॉम ईयर टिल ईयर? देखो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये उसका फाइनल पोजीशन है. कैन आई से डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट बाय कैपिटल एफ. हेलो, यस और नो? हेलो, मतलब ये डिस्टेंस हुआ ना, ये तो आर है, तो ये रहेगा आर साइन 60. हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. कैपिटल एफ इंटू आर साइन 60. ग्रेविटी ने कितना काम किया? ये काम ग्रेविटी ने किया, सही ना? कितना काम किया ग्रेविटी ने? हेलो, Minus mgh. माइनस एम जी एच. अच्छा, एच कितना हो जाएगा? एच कितना हो जाएगा? देखो ना, यहाँ से R/2. कहाँ तक जाना है, और ये 60 डिग्री है ना, ये एच होगा ना. और दिस इज व्हाट? आर माइनस आर कॉस थीटा ना, r/2 ही बनेगा. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो है. व्हाई डू यू से सो? व्हाई डू यू से दैट वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो? Because at every point the normal reaction is perpendicular to the displacement. Hello, hello, yes Yes, or sir. no? Normal reaction into displacement is perpendicular at every instant. मतलब देखो कॉन्सेप्ट को सीखो यार. यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर ब्लॉक रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा. जब यहाँ पर ब्लॉक आ गया तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट उससे परपेंडिकुलर ही है. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एट एवरी इंस्टेंट इज जीरो. इसके लिए मैंने जीरो लिखा, और ये हो जाएगा हाफ एम बी बी स्क्वायर. डिड यू गेट इट बेटा? तो ठीक है यार, एफ का वैल्यू डाल दो, सब वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा. एफ कितना है? 200 है. आर कितना है? 10 है. साइन 60 √3/2 होता है. माइनस एम जी एंड एच कितना है? h is r/2, that is 10/2, that is 5 is half m vb square. तो vb यहाँ से आपको दिखाई देगा. that answer you will get, I think so, the answer you will get 15.7. तो ये आंसर आएगा. ठीक है. अच्छा, और कोई आंसर है? और कोई आंसर है? C. सी भी है ना. वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑब्वियसली. वर्क डन बाय टेंशन इज नॉट जीरो. वर्क डन बाय टेंशन इज नॉट जीरो. ठीक है. वर्क डन बाय टेंशन जीरो कब होगा? एटवुड्स मशीन में होगा. होगा कि नहीं? Yes, sir.
इस यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो टेंशन इज डूइंग नेगेटिव वर्क, एंड यहाँ पर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टेंशन इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। यहाँ पर वर्क डन बाय टेंशन इसके केस में 0 आएगा। एटवुड्स मशीन का जब भी सम आता है वर्क डन बाय टेंशन इज 0। इसका जब भी सम आएगा तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज 0। ऐसे ऐसे सम आएगा। एक मिनट इस पे Can you hear me? Hello? Yes, sir. Okay. Oh, thank God. Okay. Now, yeah, चलो, yeah. Now फिर से पूरा setup करना पड़ता। So this is all. This is done for this thing. Now, और आगे बढ़ते हैं हम लोग आते हैं comprehension based questions. We'll do some. Match the column. You all try. हाँ. So column easy है। ये देखो ये फिर से funnel का सम आ गया, इसको try करना। Comprehension based questions. I'm doing. Question number 6 and 7 it is. Other questions are not printed over. Comprehension based है क्या? No, this is question number 6 and 7. Okay. So I'll start with question number 6 and 7. Okay. देखते हैं, चलो. A block of mass m is attached to 1.25 long string. Yes. Tied at the apex of a triangular smooth block as shown in the figure. At time 0, the triangular block is imparted a constant angular acceleration. Okay, alpha दे रहा है हमें. Alpha आया. मतलब नॉन यूसीएम की कैटेगरी में आएगा ना. Okay. About an axis with the vertical. Assuming that the block is stationary with respect to the triangular block. मतलब वो जिधर है उधर ही घूम रहा है वो. ऐसे घूम रहा है, ठीक है. ऐसे. सो ये इसका रेडियस बन गया ना. ये 37 है. ये रेडियस तो ऐसे ही मिल जाएगा हमको ट्राइग्नोमेट्री से. At what time will the block leave contact with the triangular block? Okay. At what time will the block leave in contact the triangular block? Okay, वो देखते हैं हम लोग. And yeah, fine. चलो बाबा हम लोग यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं. समझ में आया? Okay. Can I say this is T and this is normal reaction second force? Correct है ना? Hello? Yes or no? And since it is going in a circle, this will be the R, no? And this will be the centrifugal force. And this is 37 degree. ये 37 है. आपको मालूम रहेगा ये भी 37 होना मांगता है. And ये भी 37 होना मांगता है. Okay. Can I write this as a T cos 37? अंदर is n sin 37 बाहर plus m omega square r. Hello. I'm balancing along the x axis. चलेगा ना यार?
एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यस और नो? हेलो, Yes. बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। ये चीज है। cos 37 कितना होता है? cos 37 4/5. so 4/5t sin 37 is 3/5 m is given as 1 omega square r। अच्छा r कितना मिलेगा? हमको मालूम है ये 1.25 है। ये सामने वाला कितना रहेगा? अभी ट्रिग्नोमेट्री अगर हम देखते हैं तो ये 1.25 है, ये 37 है, तो ये 1 बना कि नहीं? हेलो, यस और नो? भाई cos 37 निकालेगा, यस और नो? Yes, sir. 0.8 इंटू 1.25 1 बन गया ना ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये मिल गया हमको, तो हमको तो यही जनरली सीखने आता है। अच्छा, वर्टिकल मोशन में अगर बैलेंस करेंगे वर्टिकल एक्सिस में, तो कैन एनीवन टेल मी वर्टिकल एक्सिस में क्या बैलेंसिंग करना है? नीचे तो mg है, ऊपर क्या हो जाएगा? n And cos cos 37 that is 4/5 plus t sin 37 that is 3/5। are you there? तो ये mg की जगह 10 और 1 10 हो गया ना ये, यस और नो? हेलो, यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ पर ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब ठीक है हमारे पास इक्वेशंस रेडी हो गए, ये दो, ये एक इक्वेशन रेडी हो गया, ये दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, एट व्हाट टाइम विल द ब्लॉक लीव कांटेक्ट विद दैट ब्लॉक? क्या होने वाला है इसका मतलब क्या है टेक्निकली, N इसका is क्या मतलब 0. है? तो एन को जीरो डाल दो ना इक्वेशन में। हेलो हेलो, टी और ओमेगा की इक्वेशन बन गया ना फिर? अरे भाई यस और नो? पुट एन एज जीरो, तो एन अगर जीरो डाला तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू टी इंटू 3/5, तो 50/3 आया टी। हेलो, वैसे टी को उठा के इधर डाल दो, तो 4/5 इंटू 50/3, एन तो जीरो हो गया, विल बिकम ओमेगा स्क्वायर, 5 10 तो 40/3, ओमेगा विल बिकम रूट 40/3। हेलो 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 हेलो, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, बट ये ओमेगा फाइनल है, इस पॉइंट पे एन जीरो होता है। अब मुझे मालूम है ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। हेलो, भूल मत जाना कुछ भी, यस और नो? ओमेगा फाइनल को मैं लिख सकता हूँ रूट 40/3, ओमेगा इनिशियल जीरो, अल्फा मुझे मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है? रूट 40/3 दिया है, देखो जरा क्वेश्चन में, इनटू टी। तो कहना इसे 1 सेकंड बाद वो छोड़ देगा ट्रायंगुलर ब्लॉक को, यस और नो? हेलो, Yes, sir. तो मतलब कॉम्बिनेशन है, ये चीज का ध्यान रखना है, इक्वेशन को भूल मत जाना है, बिकॉज पीपल विल स्टक अप ओवर हियर, क्या करना है। तो काइनेमेटिक की इक्वेशन इस्तेमाल करना है, टाइम इक्वेशन, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना ये। ओके ठीक है, तो दैट इज डन, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द टेंशन व्हेन द ब्लॉक लीव्स? तो टेंशन कितना मिला था मुझे? 50/3, 50/3 कितना होता है? 16.67 होता है कि नहीं? Yes, sir. This is only when n is 0. The tension will also keep on changing. वही है, वही है। ओके एक अच्छा वाला क्वेश्चन है दैट आई एम डूइंग, you all can understand. Question number 10 है, it's a good question, pay attention, 10 and 11 सब टाइम पास वाले समझे। दिस इज गुड क्वेश्चन, देखो क्या क्या बोलना चाह रहा है। A smooth rod AB, AB रॉड दिख रहा है सबको, AB
ओके, सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट, मतलब यहाँ पर है ना एक दीवार लगा दिया, अप एंड डाउन मूवमेंट करा रहे हैं, ऊपर नीचे ही जा सकता है ये. While resting on the hemisphere will move to the right with velocity v naught. तो हेमिस्फीयर अभी जो जा रहा है with velocity v naught जा रहा है. Yes or no? Hello? And the acceleration is a naught. Acceleration at that instant is a naught. ओके ठीक है, मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर कुछ भी स्लैंट सरफेस हो उससे डरना नहीं है. देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर ये उसका टचिंग सरफेस है, बराबर है क्या? अच्छा, ये पॉइंट जो हेमिस्फीयर है वो जा रहा है विद द स्पीड v नॉट. हेलो, कैन यू लिसन टू मी? Can you listen to me? Yes or no? So, but why does the hemisphere go to the right? They are telling you in the question that that instant hemisphere is moving to the right. Hello, देखो ना दिया हुआ है. Hello, at this instant whenever you are looking at it, the hemisphere is moving towards the right. Question वहां से शुरू होता है. Oh, okay, okay. Question वहां से स्टार्ट होता है कि भाई हेमिस्फीयर राइट की तरफ जा रहा है, अभी बताओ क्या करना है. You understand what's happening? They have Yes, given you sir. this concept. दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है तो दिया हुआ है, v नॉट की तरफ जा रहा है वो. अच्छा, मुझे एक चीज मालूम है कि ये भी एंगल अल्फा होने वाला है, तो ये तो 90 माइनस अल्फा रहेगा. अच्छा, ये जो जोड़ है ये कभी छोड़ेगा नहीं. हेलो, मैंने आपको बताया था ना, तो डॉटेड लाइन के अक्रॉस वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होना चाहिए. हेलो हेलो, 10 टाइम बता Yes, चुका हूं sir. मैं. तो कैन आई से v नॉट cos अल्फा is balancing vab sin अल्फा. तो कैन आई से vab will become v नॉट cot अल्फा. हेलो, सीधा आंसर आ गया, यस और नो? Yes, sir. हेलो, v नॉट cot अल्फा, ये तो मिल ही गया ना. तो पूरा रॉड जो है या पॉइंट बी जो भी है वो जाएगा वही वेलोसिटी से ऊपर at this instant. Yes or no? Yes or no? हेलो. Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन पे, 11th वाले क्वेश्चन. ये तो मिल गया, ये आसान था. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी इज, हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विल बी dvb by dt. हेलो, अरे भैया, यस और नो? Yes, sir. vb ना, तो d by dt ऑफ vb कितना ढूंढा मैंने अभी? v ढूंढा ना मैंने, v नॉट Cot alpha. कॉट अल्फा ढूंढा. अच्छा, v नॉट कांस्टेंट है कि चेंजेबल है? v नॉट कांस्टेंट है कि चेंजेबल है? v नॉट Changing. चेंजिंग है क्योंकि a नॉट है, देखो इसके पास. दैट मींस दिस इज dv नॉट बाय dt ना. हेलो, एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम. या चेंज करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? हेलो, एट दिस इंस्टेंट इट इज v नॉट, बट तो चेंज होना है, मतलब यहाँ पर uv रूल लगने वाला है. हेलो, अरे यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, बिकॉज अल्फा भी वेरिएबल है. अल्फा भी वेरिएबल है. देखो जैसे ऐसे पॉइंट ऊपर जाएगा, सपोज ये और ऊपर चला गया, तो ये अल्फा चेंज हो जाएगा ना. हेलो यार, ये थोड़ा इधर खिसकता है, थोड़ा इधर खिसकेगा, ये साइड में इधर खिसकेगा तो अल्फा चेंज हो जाएगा ना, बिकॉज ये ऊपर जाएगा. अल्फा विल कीप ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू सेंटर. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? भाई बोलो. Yes, sir. ये जब इधर आ गया, ये तो ऊपर चला गया ना थोड़ा और, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ये अल्फा हो गया, अल्फा डैश एट द नेक्स्ट इंस्टेंट. ओके,
तो यहाँ पर चलो निकालते हैं u डेरिवेटिव v डेरिवेटिव ऑफ कॉट अल्फा कितना होता है कॉट अल्फा का डेरिवेटिव प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ dv नॉट बाई dt यस और नो Yes, sir. कॉट अल्फा का डेरिवेटिव minus cosec square x cosec square sec माइनस square alpha. cosec स्क्वायर अल्फा इनटू d अल्फा बाई dt हेलो Yes, अरे सही है ना yes sir. Yes, sir. और ये हो गया कॉट अल्फा इनटू ए नॉट ना हेलो Yes sir. अच्छा अब मजा आएगा देखना अभी मेरी बात सुनो अब आंसर ठीक है ये तो सब सही है अब मुझे इसमें मतलब है ये जो चीज है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डी अल्फा बाई डी टी है क्या डी अल्फा बाई डी टी क्या है अब इधर ध्यान दो डी अल्फा बाई डी टी निकालने के लिए ये सब बाकी सब तो ठीक है वी नॉट है कोसेक स्क्वायर अल्फा है कॉट अल्फा है ए नॉट है ये सब चीज सही है डी अल्फा बाई डी टी लफड़ा क्रिएट करेगा तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा इधर से सपोज ये अल्फा है और यहाँ पे टचिंग हो रहा है ना कैन आई से दिस इज द एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट हेलो यस और नो हेलो 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 Yes, sir. बोलो अब इधर ध्यान देना सब लोग मेरी बात सुनो और मुझे मालूम है ये जो है ये वी नॉट इंस्टेंट से अभी फिलहाल वी नॉट से इस तरफ जा रहा है और ये आ रहा है कैन आई से एक्स इज आर कॉस अल्फा अरे भाई हेलो एक्स इज आर कॉस अल्फा सही है ना हेलो 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 बोलो Yes, sir. एक्स इज आर कॉस अल्फा तो इसका डेरिवेटिव मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx बाई dt इज आर कॉस अल्फा का डेरिवेटिव क्या होता है हेलो कॉस अल्फा Minus sin alpha dot d alpha by dt. अच्छा माइनस साइन इधर ले लेता हूं मैं तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी टी इज आर साइन अल्फा डी अल्फा बाई डी टी व्हाट इज माइनस डी एक्स बाई डी टी स्टैंड फॉर वी नॉट ना हेलो वी नॉट के कारण एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है एक्स घटेगा ना बिकॉज एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ना हेलो हेलो Yes, sir. वी नॉट के कारण एक्स घटेगा ना हेलो 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 यस और नो तो dx बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी को वी नॉट लिख सकते हैं वी नॉट आर साइन अल्फा डी अल्फा बाई डी टी तो व्हाट विल बी डी अल्फा बाई डी टी वी नॉट अपॉन आर साइन अल्फा हेलो हेलो यार बोलो Yes, sir. यहाँ पर थोड़ा है ना अप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या मिला आपको वी नॉट माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा बाई डी टी क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर साइन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू ए नॉट दैट इज एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी हाँ भाई हेलो अब इसको करो ना क्या होता है क्या होगा देखो जरा आंसर मैच करेगा क्या ए नॉट कॉट अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाय आर और साइन अल्फा को ऊपर ले लूं तो कोसेक्स क्यूब अल्फा हो जाएगा ना माइनस वी नॉट बाय आर कोसेक क्यूब अल्फा हेलो प्लस ए नॉट कॉट अल्फा हेलो इज दिस द आंसर इज दिस द आंसर यस और नो या देखो ना I didn't understand what you did. भाई साइन अल्फा को ऊपर ले लिया
मैंने साइन अल्फा को ऊपर ले लिया ना बेटा. So, but better than that in A naught cot alpha right as cos alpha upon sin alpha. cos Directly you अल्फा get अपॉन C. साइन अल्फा. हाँ cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा सी आ जाएगा. आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा. ठीक है. हेलो गिरेंगे ना भाई. ये क्या बोल रहा है, इसको लिखो cot अल्फा cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा और फिर ऐड कर दो. वही कहना चाह रहे हो ना आप. तो ए Yes, नॉट sir. आर cos अल्फा. हाँ हाँ बराबर है, आ गया. वी नॉट स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर. हाँ cosec स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस. ये आ जाएगा क्या. हेलो ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई किया आप लोगों ने. 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लगेगा ना. हेलो हेलो. बट वो माइनस साइन का क्या करेंगे आप लोग. हेलो 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 हेलो. So, but cosec square alpha is 1 plus cot square alpha, not वही मैं tan. कह रहा हूँ tan स्क्वायर अल्फा. तो वहां पे tan है ना बेटा. हेलो So, it should be none of these. नन ऑफ दीज आएगा. वही नहीं करेगा ये मैच नहीं करेगा ये आंसर. वरना सामने ही दिख जाता था भाई. वो ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग कर लेना. डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको. हेलो Yes, sir. फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझना है. बगैर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग अप्लाई करते रहो, उसमें कोई इश्यू नहीं है. मुझे यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाना है. फिजिक्स समझ में आ गया इसका. ठीक है चलो. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं. मैच द कॉलम यार. मुझे ना जरा भी अच्छा नहीं लगता मैच द कॉलम. इज वेरी वेरी सिंपल ओनली. आई विल डू द थर्ड क्वेश्चन. ये सब आप लोग प्रैक्टिस करना थोड़ा यार. अरे वो याद है टॉपलिंग का सम. याद है टॉपलिंग का. हेलो टॉपलिंग का डेरिवेशन सिखाया था ना मैंने. हु लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट, इनर व्हील और आउटर व्हील. Outer. outer wheel. याद है एक फॉर्मूला था n1 प्लस n2 इज mg. याद है ना. फ्रिक्शन इज mv स्क्वायर बाय r. ये दूसरा था. फिर क्या था n1a नहीं n1a प्लस f इंटू h इज n2 into a. याद आ रहा है ये सब. हेलो Yes, sir. ये सब यार. ये h था ना, याद है ना सबको. हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये a था, ये भी a था. व्हाट इज हैपनिंग मैन. ये चीज था. आप लोग डेरिवेशन का डेरिवेशन पूरा सिखा दिया मैंने. एज द स्पीड इंक्रीज्ड, एज द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज्ड. स्पीड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा. स्पीड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा ना. हेलो Yes, sir. फ्रिक्शन बढ़ बढ़ के क्या होगा. एक पॉइंट ऐसे आएगा वेयर दिस टॉर्क विल टेक ओवर ना. तो गाड़ी ऐसी हो जाएगी ना. हेलो ये ऊपर उठ जाएगा. यस और नो. बिकॉज़ दिस फ्रिक्शन हैज टेकन ओवर ना. यस और नो. हेलो तो यस और नो. इनर व्हील इज गोइंग टू लीव द ग्राउंड फर्स्ट ना. तो n1 will decrease ना. Hello because n, are you getting it what's happening. Hello hello hello. So, Yes but or no. N1 is the inner wheel. हाँ तो inner wheel will leave the ground first ना. Inner wheel is going to leave the ground first ना. याद है आपको. Outer wheel leaves, na? No बाबा. Inner wheel will leave the ground first always. Outer wheel कैसे. ऑडियंस की तरफ उड़ेगा ना वो तो. हेलो toppling always happens towards the audience ना in a race. Have you seen.
N1 will always decrease. देखो क्या होगा, मैं आपको फिर से बता दूं, देखो स्पीड बढ़ेगा, ये बढ़ा कि नहीं, हेलो, Yes. ये बढ़ा, ये टॉपलिंग स्पीड, ये कैसे कर रहा है, टॉपलिंग स्पीड ऐसे कर रहा है, और ये कैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, और ये भी ऐसे कर रहा है, यस और नो? तो हु विल डोमिनेट देन, विच टॉपलिंग विल डोमिनेट, एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज? हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं, यस और नो? दिस विल डोमिनेट ना बेटा, हेलो? Yes, sir, got it. तो अब ये तो सिंपल है, तो ये तो उड़ जाएगा ना भाई, ये उठ गया तो N1 तो जीरो हो गया ना सीधा, तो मतलब पूरा जो जोर है N1 जीरो हो गया, मतलब N2 का पूरा जोर mg पे आ गया ना, पूरा वजन एक पहिए पे आ गया ना, आउटर व्हील पे। Yes, sir. तो N1 विल डिक्रीज, पूरा पढ़ाया था मैंने, N1 विल डिक्रीज, N2 विल इंक्रीज, N2 विल इंक्रीज एंड देन बिकम कांस्टेंट, बराबर है क्या? हेलो, यस और नो? N2 विल इंक्रीज, F by F क्या है, F by F क्या है, F is the centripetal force and friction only provides the centripetal force ना, F by F 1 बनेगा कि नहीं? हेलो, Yes, sir. यहाँ आ रहा है, और F क्या है, F is mv square by r ना, V बढ़ा तो F भी बढ़ा, will increase, yes or no? हेलो, हेलो, are you getting it? Yes, sir. बिल्कुल तो है एकदम। चलो और एक सम करते हैं आपके अच्छे के लिए, I'll do the fourth question, huh? So it is all time pass things here. Position vector, velocity vector, acceleration vector and circular motion are given, ठीक है? तो ये circular motion हो रहा है, ये r बार है, ये v बार है, और a बार है। a बार तो हमको मालूम है ना, दो स्प्लिटिंग रहता है, दिस इज at एंड दिस इज acp, उन दोनों का नेट जो रहेगा वो a बार रहेगा, नेट a बार, ये a बार है, ठीक है ना? हेलो, आर यू देयर विद मी? Yes, sir. अच्छा, कोई बता सकता है v बार और r बार के बीच में एंगल कितना है, v बार और r बार के बीच में? 90. कैन आई से v बार डॉट r बार कितना होता है? हेलो, 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 यस और नो? Yes, sir. कैन आई से इफ आई डू v बार डॉट r बार, मतलब 4i minus aj equal to 3i minus 4j is equal to 0. Now the 3 4s are 12, minus plus 4a is equal to 0. A will become equal to minus 3, yes or no? Magnitude of a 3 होगा, हेलो, yes or no? क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, yes or no? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, मींस व्हिच एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट? ACP. टी जीरो है, मतलब ये पूरा जो ए है ना वो एसीपी के रूप में बदल गया है। हेलो, एटी है ही नहीं, आर यू गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एसीपी बार डॉट वी बार आल्सो? जीरो ओनली ना, बस ये भी तो 90 है। हेलो, -6i plus bj, v bar is given as 4i minus aj, बड़े is -3, तो ये हो जाएगा 3j is equal to 0, -24, ये b है, plus 3b, b will become equal to 8 ना, b is 8, b is 8, मतलब ये p बना। रेडियस ऑफ द सर्कल तो हमको मालूम है 3 और 4 तो 5 ही होता है ना, ये r ही बनेगा। Okay, now D point is very important, that is R bar dot V bar cross A bar, मजा आएगा देखो। Okay, देखो एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए,
V बार क्रॉस A बार. आप अगर अपनी उंगलियां घुमाओ V बार टू A बार, हेलो ये you have to take your fingers curl from A to B ना. हेलो याद है ना ये Yes, sir. यार, ऐसे याद है ना, ये और B था. You take your fingers curl from A to B, ऐसे लेके जाते थे ना. तो the thumb will give you the direction of A bar cross B bar. याद आ रहा है क्या? ये तो ये रूल है ना स्टीलेजन वेक्टर्स का. हेलो, तो आप अपनी उंगलियां मोड़ो फ्रॉम V टू A, तो कहाँ आएगा अंगूठा? कहाँ आएगा भाई? अंगूठा कहाँ आएगा? V टू A, अंगूठा कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर ऊपर. हेलो, अरे भाई इधर देखो, इधर देखो. See, V is here in the plane, huh? And A is this way. Yes or no? Hello. Yes, sir. So where will V cross A come? Where will your अंगूठा come? थंब कहाँ आएगा? Upwards. बाहर ना, सीधा अपवर्ड आएगा. अपवर्ड आएगा ना. ये है ना आर बार, है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. ये आर बार नहीं, सॉरी, V बार क्रॉस A बार. गेटिंग इट? ये है V क्रॉस A, और उसको किसके साथ में डॉट करना है? R. R के साथ. व्हाट इज दैट? जीरो ओनली ना. अरे भाई ये बाहर है ना, ये दोनों 90 हुआ कि नहीं? ये बाहर निकल रहा है ना स्क्रीन के, और ये R है, तो दिस आंसर विल कम जीरो और नॉट. हेलो हेलो. Because two vectors perpendicular to each other will give you zero only. Hello, are you all understanding? Yes, नहीं, sir. हाँ ना बोलो, yes or no. Correct है यार. So this is also over. Match the column also done. अब आप लोग ये match the column तक खत्म कर देना. So value Subject. of A shouldn't it be none? Value of A. Which is minus 3. Actually they ask you magnitude of A. Magnitude of A. वरना सब तो none में चला जाएगा ना. B8 में चला जाएगा. हाँ हाँ ठीक है. None आएगा. Yes, I am sorry. ये minus B consideration में S है. S. If they would ask only magnitude, ठीक है. Correct है, correct है. Minus में भी you have to take that thing into consideration. ठीक है. That is okay. I hope everyone has understood what is happening. Hello. ठीक है. Subjective, I think there are total 13 sums that will be finished in one lecture only. I'll tell you when the lecture will be there. And next time, say we can start with our system of particles. Once the chapter gets over, and this week the chapter will get over. So next week, say we can start with our system of particles. Hello. Thank you. Take care. Bye. I say thank you. Yes. I can't hear. Hello. He's asking if you have class on Thursday. No, if I see I have a appointment actually, तो Thursday को अगर जल्दी हो पाएगा तो I will take it at 4:30. If it is not possible, then it will not be there. It will be next week. Next week ये खत्म हो जाएगा Tuesday को. Getting it? So we are not behind only. We are at par only. And then we can start with system of particles. चलो. Thank you very much. Bye.